الحمد لله الذي أبدل الأبراك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے خطبہ مدینہ کے بعد ہم نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے زمرے میں چند منٹ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور مل کر کے ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار کشتی کے ونہار سید ابرار محمد عربی روحی خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اب یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور بڑے واضح بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خطبہ مدینہ کے بعد اس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کریم کی آیت کا یہ ترجمہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں خوف ہے اور نہ ہی انہیں غم. یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور عام لفظوں میں، عام بول چال میں، آپ کی بھاشا میں اسے کہا جائے تو یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے. اور آنے والے جمعہ کو حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ معین الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 11ویں عالم پیر کہا جاتا ہے، اگلے جمعہ کو ان کا نظر و نیاز ہے، ان کا واقعہ ہے. حالانکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم بھی اس دن نہیں ہوا، ان کی پیدائش بھی 11 کو نہیں ہے، یا ان کا انتقال، ان کا وفات، ان کا پردہ کرنا بھی 11 کو نہیں ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی سن ولادت یا کسی کی وفات کی تاریخ سے اس کا سالانہ، اس کا عرس جو بھی منایا کرتے ہیں، نظر و نیاز دیا کرتے ہیں، انہی 2 چیزوں سے ہوتا ہے. لیکن حضرت پیران پیر کا نہ وفات ہے اس دن اور نہ ہی ان کی پیدائش ہے اس دن. آخر یہ 11 کی تاریخ جو ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس میں 11 تاریخ جو فکس کی گئی ہے وہ اس لیے کہ حضرت پیران پیر کہیں دور دراز ہونے کے سبب ان کے آستانے پر اگر منگتا آتا، سوالی آتا تو یوں ہی چلا جاتا. حضرت پیران پیر سے ریکویسٹ کیا گیا، گزارش کی گئی کہ آپ کو ایسی تاریخ دے دیں جس تاریخ میں کوئی بھی منگتا آپ کے در سے خالی نہیں. تو حضرت پیران پیر نے 11 تاریخ اس لیے مقرر فرمائی کہ 11 تاریخ کی بہت اہمیت ہے. 11 تاریخ کی بہت اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا تو دن 10ویں کی تھی اور رات 11ویں. دن 10ویں اور رات 11ویں. حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہوئی تو دن 10ویں اور رات 11ویں کی تھی. اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو وہ بھی دن 10ویں کی تھی اور رات 11ویں کی تھی. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بنایا تو دن 10ویں کی تھی اور رات 11ویں کی تھی.
अगर गिनाया जाए तो तकरीबन 52 चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चीज़ को बनाया तो दिन 10वीं की थी और रात 11वीं की थी। हज़रत पीरान पीर ने कहा कि मेरे ममता और मेरे सवाली का मुलाकात का दिन होगा तो वो भी दिन 10वीं होगा, रात 11वीं। हज़रत पीरान पीर का मुंतखब किया गया, ये तारीख है जिस तारीख में उनका उर्स और उनका फातिहा, उनका नज़र नियाज होता है। एक बार का वाक़या है, एक बार का जिक्र है कि हज़रत पीरान पीर और ज़मीन सैयदना शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीरान पीर 11वीं वाले पीर, वो अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए। एक आदमी आया और आकर के रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीने में अफ्तार की दावत देकर गए। आपने कबूल फरमा लिया कि ठीक है, तुम्हारे घर अफ्तार करने के लिए मैं आऊँगा। जैसे ही वो गया कि दूसरा आदमी उनके पास आता और आकर के कहता है कि हुजूर, अगर आज आपके कदम मेरे दरवाजे तक आ जाएं तो मेरे घर की जीनत बढ़ जाएगी, आप इस दावत को कबूल फरमा लीजिए। तो हज़रत पीरान पीर ने उसकी भी दावत कबूल फरमा ली और जाने का टाइम वही मगरिब के वक्त, इसलिए कि अफ्तार मगरिब के टाइम में होता है। रमज़ान के महीने में जब हम रोज़ा रहते हैं तो रोज़ा रहने के बाद अफ्तार जो करते हैं वो मगरिब का ही टाइम होता है। मगरिब के टाइम में हज़रत पीरान पीर ने एक नहीं 2 दावत कबूल की। दूसरी दावत के बाद फिर एक तीसरा आदमी आपके पास आता है और आप करके कहता है कि हुजूर, अगर आज आपके कदम मेरे दरवाजे तक पहुंच जाते तो मेरे घर की जीनत में 4 चांद लग जाते। हुजूर, आज मेरे घर पर तशरीफ लाइए, आज रमज़ान का दिन है, रोज़े का टाइम है, आज रोज़े की हालत में मेरे घर पर अफ्तार करवा लीजिए, मेरे घर पर अफ्तार कर लीजिए। हज़रत पीरान पीर ने उसकी भी दावत कबूल करवा ली और 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 5-6 नहीं, बल्कि तकरीबन 25 दावत आपने कबूल फरमा ली। टाइम एक है, वक्त एक है, समय एक है और एक ही वक्त में इतनी दावत। अब जो मुरीद बैठे हैं वो सब सुन रहे और परेशान हैं कि एक के घर जाएंगे कि दूसरे के घर जाएंगे, कल तो खैर नहीं है, जो भी आएगा हमसे सवाल करेगा। एक कहता है कल आऊँगा ही नहीं, दूसरा कहता है कि कल मेरी छुट्टी अभी से लिख लो। आपस में बातें हो रही हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है। हज़रत पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जब असर का टाइम होता है तो असर के टाइम में अपने मुरीदों से कहते हैं कि ऐसा करो, आज का अफ्तार मेरे हुजरे में लगा देना, आज अफ्तार अपने हुजरे में करूँगा, ईशा की नमाज अपने हुजरे में अदा फरमाऊँगा और ईशा के बाद अपने हुजरे में आराम फरमाऊँगा, आज इतना काम तुम ज़रूर कर देना। मुरीद उनकी बात पर अफ्तार उनके हुजरे में लगा देते हैं। अफ्तार हुजरे में लगा दिया, ईशा का खाना हुजरे में लगा दिया, आपने अफ्तार भी अपने घर के अंदर अपने कमरे में किया और ईशा की नमाज भी आपने अपने कमरे में अदा फरमाई और रात को सो रहे। सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में जब आप अपने मसनद पर बैठते हैं, आप अपनी बैठने की जगह पर बैठते हैं तो एक आदमी आता है और कहता है कि हुजूर, आपका करम नवाजिश है कि आप मेरे घर पर तशरीफ़ लाए, आपके कदम मेरे घर की चौखट पर पहुँचे, मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल हो गया। दूसरा आता है, कहता है कि हुजूर, आपका करम है कि आप मेरे दरवाजे पे तशरीफ़ लाए, आपके आने के सबब मेरे घर की जीनत बढ़ गई है, मेरे घर की इज्जत बढ़ गई है। यके बाद दिगरे सब आकर के इस बात को कह रहे हैं कि आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाए हैं, आपका आना मेरे घर हुआ है, आपकी तशरीफ़ आवरी मेरे घर हुई है। इधर मुरीद परेशान
परेशान है कि या अल्लाह ये माजरा क्या है, खाना हमने यहाँ लगाया था, अफ्तार हमने कमरे में रखा था, ईशा की नमाज हमारे सामने अदा की गई है और सोना मेरे सामने हुआ है। मुरीद परेशान है। हजरत पीराने पीर से सवाल करते हैं कि हजरत ये कैसे हो सकता है, आपको कमरे में हमने इंतजाम किया था, आपका बिस्तर हमने लगाया था, आपका अफ्तार हमने लगाया था, आपका खाना हमने लगाया था, आप मेरी नजरों के सामने आराम फरमा रहे थे, आप अपने घर से किसी और के यहाँ गए नहीं है, फिर भी आकर के लोग कह रहे हैं कि मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपका आना मेरे घर हुआ है। कहा कि परेशान मत हो, अगर मैं तुझे समझाता हूँ। अरे परेशान मत हो, मैं कैसे चला गया, लोगों ने कैसे मुझे देखा, मैं तुझे समझा देता हूँ। कहा कि एक लोटा पानी लाओ, मैं वजू करना चाहता हूँ। लोटा में पानी दे दिया गया। हजरत पीराने पीर पानी को लेकर के और वजू फरमाने के लिए बैठ गए। आपने वजू फरमाया और वजू फरमाने के बाद लोटे के बचे हुए पानी को वहीं एक पेड़ था, जिस पेड़ के ऊपर आपने छिड़क दिया है। कहा मेरे मुसल्ले को बिछा दो, मैं इस पर नमाज अदा करूंगा। मेरे मुसल्ले को यहाँ बिछा दो, मैं इस पर नमाज अदा करूंगा। और सुनो सुनो, जब मेरी पेशानी सजदे में चली जाएगी, जब मैं अपनी पेशानी को खम कर दूंगा, अपनी पेशानी को झुका दूंगा, उस वक्त तो मुझे मुसल्ले पर मत देखना, उस वक्त मुसल्ले की तरफ नजर मत करना, बल्कि इस पेड़ के पत्तों पर देखना। जब तुम इन पत्तों पर देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएंगे। अब हजरत पीराने पीर जो हैं नमाज में चले जाते हैं और जब उनकी पेशानी सजदे में लगती है, उनकी पेशानी जब सजदे में होती है, सारे के सारे मुरीद पत्तों पे नजर डालते हैं, पेड़ के पत्तों को देख रहे हैं। हजरत पीराने पीर की नमाज अदा हुई है और नमाज अदा होने के बाद अपने मुरीदों से मुखातिब होते हैं और मुखातिब होने के बाद पूछते हैं कि मोरे मुरीद तूने क्या देखा है, तुम्हारे माथे की निगाहों ने क्या मुलाहिजा किया है, तुमने अपनी नजरों से क्या देखा है। तो मुरीद कहते हैं कि हुजूर बज़ाहिर मैं देख रहा था कि आपकी पेशानी यहाँ जमीन से लगी हुई थी, यहाँ मुसल्ले से टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आप कयाम मुसल्ले पर फरमा रहे थे, पेड़ के पत्तों पे नजर आ रहे थे, आपका रुकू जमीन पर हो रहा था, पेड़ को पत्ते पर नजर आ रहे थे, आपका सजदा जमीन पर था, आप पेड़ के तमाम पत्तों पे नजर आ रहे थे। हजरत पीराने पीर कहते हैं कि जब ये पीराने पीर, ये गौसे आजम, ये अब्दुल कादिर जिलानी जब जमीन पर सजदा करके तमाम पेड़ के पत्तों पे नजर आ सकता है, तो क्या अपने मुरीदों के घर नजर नहीं आ सकता है। जिस तरीके से ये पीराने पीर यहाँ नजर आ रहा था, अपने मुरीदों के यहाँ भी हाजिरी दे